Very good evening, everyone. Thank you for joining us, and a very warm welcome to a special Disruptive Education live session by Global Education and Training Institute, what we call Getty. The disruptive education movement has been conceived with a grand vision of gathering global education leaders under one platform and to brainstorm on and charter the next quantum leap in education. Today, at this very special Disruptive Education Facebook and YouTube live session, I, Sunita Gandhi, am in conversation with an internationally famed nutritionist, a Guinness World Record holder for memory, and one of the world's most prolific authors. This is none other than Dr. Biswaroop Roy Chaudhary, who is the author of 25 books. This global stalwart has gathered millions of followers. He holds a PhD in diabetes and is on the advisory of the RICHS Vietnam. He's the content creator for Lincoln University, Malaysia, and the head of R&D at Sant Hidaram Medical College in Bhopal. The well-known proponent of reversing lifestyle diseases, Dr. Biswaroop has the vision of creating a healthier world through diet. Today, under the Getty Life Forum, Dr. Biswaroop is going to address us on food as medicine. So I hereby invite Dr. Biswaroop to address our listeners. And I should say that I had a rendezvous with Dr. Biswaroop many years ago, to be precise, in 2007, when I was laying the foundation of a school called City International School in Lucknow. And at that time, he was already a Guinness World Record holder for memory in the world. And just totally fascinating. I asked him, and he proposed also to set up a memory lab for children. So I believe the world's first memory lab established by Dr. Biswaroop was at City International School in Lucknow. And so I've kept in touch with him and feel very blessed because he's a man of many, many talents. And so over to you, Biswaroopji. Now you please take the charge of this session, and we'll be listening to you for some time before we'll be then posing some questions and answers. And audience, please post your questions on the comments, and we'll be able to see it here in the studio, and Dr. Biswaroop will be able to address some of them. So we look forward to a very wonderful live session with all of you. Thank you. Thank you, Dr. Sunita Gandhi. And I clearly remember those the moment when I met you, and more than that, I remember the moment when I met your mom, and that was really a great memory for me. Yeah. So, but here, I asked you, your mom is not around, right? So she's busy in something or somewhere else. Okay. Because the moment I am whenever I saw and the very thought of her, she's controlling the whole school. So I shiver. So thank God she's not around at this moment. Yes. Here you've given me about 25 minutes to speak, first of all, right? 20 to 25 minutes. So I planned it accordingly. So let me be very precise. I am Dr. Biswaroop Roy Chaudhary, as already told. So it has been more than 1 decade. I've been working on diabetes and lifestyle disease. 1 decade in India. So in India, when I talk of diabetes, when anybody talks of diabetes, diabetes is quite connected, associated with somebody who is fat. Diabetes means fat, fat means diabetes. That is what is the perception in India. And about 7 years back, I started a center in Vietnam, in Ho Chi Minh City. There I found it is the reverse. Those who are diabetic people, they are all thin. So there the perception is if you get too thin, you become a diabetes patient. So that is about 7 years back. And still I'm having a center in Vietnam. And third, I started practicing in Kuala Lumpur about 3 years back. So in Kuala Lumpur, amazing, it is a combination of fat diabetes and thin diabetes. Means the Malaysia, as you know, the multi-nation country. So the people, those who from India, they stay there for last, let's say, about 100 years or 200 years. They are mostly the fat diabetic people, and the Chinese people, thin diabetes people. So I have 3 different population and to experience. And now with all those experience, I got some solution for you, and that's what I'm going to share with you right now.
So diabetes can be thin diabetes, fat diabetes, but what is diabetes? Very interesting and very important is it is not a disease. It is never classified as a disease. You cannot call it a disease. Why? Because diabetes simply means, when you say diabetes, it only means one thing: high sugar in the blood. Diabetes means nothing, high sugar in the blood. So how much high? In 1 minute, I'm going to explain and give some idea. Let's say my body weight is about 70 kg. So if I take out all my blood out of my body and want to put in the bottle like this, so I'll have about, I'm in my body approximately 5 liters of blood. This means, this is 1 liter. This means I need 5 bottles like this to fill all my blood inside. Now, out of the 5 bottles, from any of the 1 bottle, I take a drop of blood and put in the glucometer. And the reading shows 100 mg per deciliter. So what this 100 means, right? If it shows 300, doctor will say you're a diabetes patient. If it shows 100, doctor will be happy, you'll be happy. What it really means, it is not just a number, it says something else. If you understand that, you will understand that you can cure, you can reverse diabetes in 3 days. So this next 1 minute is going to be very important. Just understand this. So I take a drop from my blood from one of the bottle, and it shows 100. 100 means in 1 liter of my blood, the amount of glucose, amount of sugar is 1 gram. Simple. This means if I take out all the sugar from this blood, it will be 1 gram. 1 gram. How much is 1 gram? Very simple. 1 teaspoon full of sugar is about 5 gram. That means 1/5. Very small amount. This means this 1 gram. So if my reading is 100, it means at this moment the amount of sugar which is circulating in my blood, how much sugar is circulating in my blood? If you're a maths teacher, you know this means at this moment in my body the circulating sugar is just 5 grams. That means 1 teaspoon, right? This means if I squeeze out all the sugar from the circulatory system, it will be just 5 grams, 1 spoon, right? For most of you. Now, let's say come back. I take a drop of blood from your body and put in the glucometer. Reading comes 300. So it means in 1 liter of your blood, 3 grams of sugar is circulating, right? And that means in the whole body, it will be about how many liter? How many grams of sugar? It will be about 15 grams. 15 grams. This means if I translate into how many spoons? 3 spoons only. 3 spoons, right? 3 spoons of sugar. So you are classified as a diabetes patient because in your body it is 3 spoons of sugar is circulating, but I am classified as a healthy person because in my body 1 spoon of sugar is circulating. So what is the solution? If from your body I take 2 spoons of sugar back, then you are no more a diabetes patient. That's all. This means my job is, if I do something so that from your blood circulation I take only 2 spoons of sugar out, and I ensure that it should remain that way only for the rest of the life, you are not a diabetes patient. So here the most important thing I'm going to tell you now, that is, it is not important that how long you have been diabetes patient. Whether you have been diabetes patient for 1 decade, 2 decades, 3 decades, doesn't matter. What matters is, can I take out that 2 spoons out of your blood? The answer is yes, I can take out. Now the whole question is how to take out. So here in next 15 minutes, I'm going to tell you how you can do it. And it can be done easily because that's what I've been doing for last several years. And if you ask me numbers, about 22,000 diabetes patients, I could take out 2 spoons of sugar or 3 spoons of sugar from the blood, and they became non-diabetic. It is as simple as that. Okay, now what you do? You take medicine, say metformin, the most common medicine which you take. By the way, let me tell you, metformin now, the extended release one, about 10 days back, it is being banned in US for a while because that is found to be cancerous. So that's why it is being banned. I do not know what they are going to do after that, but that is the status. So when you take these medicine, all the medicine of blood sugar, these medicine, most of them has come in the market before 1960. That was the time when there was no law of randomized controlled trial. Since there was no regulatory process
controlling process. So any medicine written by any doctor, it works, it quickly come in the market. Only in 1962 randomized controlled trial this law came, but most of the diabetes medicine came in the market before the law came. So but when the law came, then the trial started on those medicine, those which are already in the market. And the trial name is Accord trial, Advanced trial, UKPDS trial. There are a number of trials. All the trial came to the conclusion, only one conclusion, that these medicine can reduce the blood sugar at the cost of making you more sick. Sick of heart disease, sick of cancer, sick of kidney failure. Now what the medicine does, very simple. When you take a medicine, it takes that extra 2 or extra 1 spoon of sugar from your blood, but it hides that sugar in some other part of the body, maybe the heart, maybe the kidney. And wherever it hides, it can be your eyes, behind the back of the eyes. Wherever it hides, now you understand that part of the body will be compromised and you become patient of that particular disease. If it is a heart, you will be called as a heart disease patient. So you cannot remain a diabetes patient for long. You will graduate to a heart disease. You will graduate to a kidney failure. You have to graduate to a cancer if you keep on taking the medication. So if you are the one who is taking the medication, I'm not just talking of diabetes. You can include the name thyroid, you can include the name high blood pressure, you can include other common examples. Anyway, I was given only 25 minutes, so I'm trying to squeeze everything. You just name diabetes. The same rules apply for high blood pressure. The same rule applies for thyroid, other disease, also the lifestyle disease, where every day you need to take the medication. So what happens when you take these medicine? It takes the blood sugar out of the blood and it hide it in some other part of the body. Whichever part of the body it decides to throw, you become sick of that particular disease. That's simple. So when you take a medicine, your blood sugar drops. Your blood sugar drops. Try to understand that. Your blood sugar drops. But what is not dropping is your body sugar remains the same. Only, let's say this is my room. I have a lot of, waste material here. So, but it is visible here. I'm putting and hiding somewhere else. But in my room, it is still there. The only thing is it may not be visible in the first look. The same thing you are doing for those in the medicine. Same thing. Sorry to interrupt you, but there's an overwhelming demand for you to speak in Hindi. So what I would suggest is we stretch the session a little longer, and you can speak both in English and Hindi. So we cover people from both language backgrounds. Okay, great. So I'll summarize in Hindi. I'll speak mostly in English. Will that be okay? हाँ, तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी आप डायबिटीज की दवा लेते हैं, जो भी दवा आप ले रहे हैं, वो दवा सिर्फ इतना करता है कि ब्लड से शुगर को निकालता है, निकाल के कहीं बॉडी से बाहर नहीं फेंक रहा है, बॉडी के अंदर ही फेंक रहा है। और बॉडी के अंदर जहां भी उसको फेंकेगा, आप उस बीमारी का पेशेंट बन जाओगे। आपका ब्लड से शुगर निकाला, हार्ट के अंदर डाल दिया, तो यू आर डेस्टाइन्ड टू बिकम हार्ट डिजीज पेशेंट। आप देखिए, जब भी कोई डायबिटीज का दवा शुरू करता है, विद इन द स्पैन ऑफ 2 years, ही इज नो मोर अ डायबिटीज पेशेंट ओनली, ही बिकम अ हार्ट डिजीज पेशेंट, मोस्टली हार्ट डिजीज पेशेंट। और आंखों में असर पड़ता है, तो आंखों से जुड़ा हुआ कोई उसका बीमारी का नाम उसमें जुड़ जाएगा, कैटरैक्ट जुड़ेगा, ग्लूकोमा जुड़ेगा। So these are the transition. You transit, you graduate from one disease to other disease. तो दवा लेना is not an option. It is not an option. तो अब सवाल आता है, तो करें क्या? सबसे पहले तो 2 बातें आपको ध्यान में रखना है, फिर मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। 2 बातों को 2 मिनट में कवर करता हूं। I will cover 2 things in 2 minutes and then we'll come to the solution. Number 1, what is diabetes? High blood sugar. How much high should be called as high blood sugar? Just remember one number. एक number याद रख लीजिए. That number is 250 mg per deciliter. You eat lot of food. आप बहुत सारा खाना खाइए पेट भर के, 2 घंटे बाद आप चेक कीजिए, postprandial जिसे बोलते हैं, and if it is less than 250 mg per deciliter without any medicine, you are not a diabetes patient, right? If it is more than 250 mg per deciliter, then you are a diabetes patient. So सिर्फ इतना रूल याद रखना है. Don't believe what your doctor is saying. Just believe what you're seeing with the glucometer, and the number you remember, only one number, 250 postprandial. That's all. Nothing else. No fasting, no HbA1c. All they confuse you, and you are. If you see so many numbers, then there is a great possibility that you will end up being called as a diabetes patient. You end up being
taking the medication. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एक नंबर याद रखिए 250 mg per deciliter. 250 का मतलब अगर ये 1 लीटर के बॉटल में अगर ऐसे एक बूंद लिया और 250 आया, हाउ मच अमाउंट ऑफ शुगर इज देयर इन 1 लीटर? 2.5 gram. That is the amount of sugar. Anyway, now the same rules for blood pressure also. Blood pressure, high blood pressure. If I say what is the standard blood pressure, आप बोलेंगे standard blood pressure is about say 120/80. Had I asked this question about 20 years back, 1997, 98, ऐसे टाइम पे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता, at that time it was 160/100, 160/100. But after 2000 it became 140/90. Now mostly people will say 120/80. Maybe by the end of this year they will say 115 by say 75, right? So at that time only those people will be called healthy, those who will not check their blood pressure. जो अपना ब्लड प्रेशर नहीं चेक करेगा बस वही हेल्दी कहलाएगा, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि हो सकता है पेशेंट ही नहीं हो, लेकिन वो नंबर को आप अचीव करना चाहते हैं जो अचीवेबल ही नहीं है। अचीवेबल है लेकिन मेडिसिन के साथ। तो एक नंबर याद रखिए, मैंने अभी याद दिलाया था 250, वो ब्लड प्रेशर के केस में भी काम आएगा। कैसे? बिना दवाई के आप ब्लड प्रेशर अगर चेक करते हैं अपना, बिना दवाई के इन्फ्लुएंस के, एंड आपका सिस्टोलिक ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को प्लस कर दीजिए, और अगर प्लस करने के बाद आंसर लेस देन 250 आता है, देन यू आर नॉट अ ब्लड प्रेशर पेशेंट। सिमिलरली कोलेस्ट्रॉल, द टोटल कोलेस्ट्रॉल लेस देन 250, नॉट अ कोलेस्ट्रॉल पेशेंट, बट विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ मेडिसिन। तो बट अगर इससे ज्यादा हुआ, if it is more than this 250, any of these, this means आपको उसको नीचे रखना है, नीचे लाना है, नीचे लाना है। How to do it? How to do it? It is very very simple. कैसे करना है वो बहुत आसान है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। यहाँ पे एक बात याद रखिए फॉर ब्लड प्रेशर, मैंने एक्सप्लेन किया व्हाट इज ब्लड शुगर, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज ब्लड प्रेशर। इमेजिन ये एक पाइप है, दिस इज अ पाइप, एंड आई पुट दिस पाइप ऑन अ टैप। मैं टैप से इसको फिट कर देता हूँ, पाइप को वाटर फ्लो करता हूँ। इफ आई स्क्वीज द पाइप, अगर इसको मैं स्क्वीज करता हूँ तो वाटर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? वाटर प्रेशर विल increase. Lesser the diameter, more is the pressure. Lesser the diameter, more is the pressure. Now imagine it is not a pipe for water. ये पानी का पाइप नहीं है, it is a blood pipe, यानी कि blood vessel है। blood vessel में अंदर ब्लॉकेज हो जाएगा तो diameter क्या होगा? कम होगा, right? If there is some blockage, the diameter will reduce. If the diameter reduce, the blood pressure should increase. Blood pressure should increase. So what I mean to say, जब आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब there must doing you're taking a medicine to reduce the medicine. आप एक मेडिसिन ले रहे हैं ताकि ब्लड प्रेशर कम होगा। तो मेडिसिन क्या करता है? क्या वो ब्लॉकेज हटा देता है? नहीं, ब्लॉकेज को कुछ नहीं करता है। मेडिसिन फोर्सेस द हार्ट टू वर्क लेस। मेडिसिन हार्ट पे फोर्स करता है कि वो कम काम करे, तो आपका ब्लड प्रेशर रीडिंग ठीक आता है। बट व्हाट इज द कॉज? कॉज इज द ब्लॉकेज। देयर इज नो मेडिसिन ऑन अर्थ विच कैन रेक्टिफाई द ब्लॉकेज। कोई ऐसी दवा नहीं है जो ब्लॉकेज को हटा दे, देयर इज नो मेडिसिन। बट ऐसी दवा है जो आपके हार्ट को कमजोर कर दे। हार्ट कमजोर हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर घटेगा ही घटेगा। बट द प्रॉब्लम इज द ब्लॉकेज इज स्टिल देयर। सो व्हाट आई मीन टू से हियर, if you are taking a blood pressure medicine to achieve a number, then you are putting yourself in illusion. आप एक धोखे में हो कि मेरा नंबर ठीक आ रहा है 120/80 के आसपास, तो मैं तो सब हेल्दी हूं, मुझे कोई खतरा नहीं है। बहुत खतरा है आपको, आप अपने हार्ट को कमजोर कर रहे हैं, ब्लॉकेज अपनी जगह पे वहीं पे है। तो अब सवाल आपका आता है सिंपल, तो करें क्या? दिस इज द आंसर, दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट आई शुड डू। नाउ इन नेक्स्ट 5 minutes आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट यू शुड डू। आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना है। यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल एंड डाइट, एंड यू कैन reduce the blood sugar, you can reduce the blood pressure, you can reduce the blood cholesterol in 3 days. 3 days challenge. What is the day today? 6th of June. आप मुझसे मिलिए 10th June को, right? 10th June को, if Dr. Sundarkanti allow, we can come back here in the same forum and you can question me कि आपने 6 जून को बताया था, क्या हुआ? मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, right? So I'll be available here. So so I rather challenge all of you that let's come back on 10th, and I want you to do these things for next 3 days so that to see whether it works or not. I have seen it on thousands of people, but that is not important. I want you to see.
करना क्या होगा अगले 3 दिन तक, व्हाट इज द चैलेंज एंड हाउ टू डू इट एग्जैक्टली? वेरी सिंपल. You are a patient of blood pressure, you are a patient of blood sugar, you are a patient of you are taking medicine for cholesterol, or you are taking thyroid medicine. There are a lot of medicine you are taking. First, start with these three. If you are the one who are taking any of these three medicine, अगर आप इन तीनों में से कोई मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन जो इंसुलिन है उनकी बात नहीं कर रहा है, जो किडनी पेशेंट है उनकी बात भी नहीं कर रहा हूं, उनकी बात थोड़ी देर बात कर लेंगे. जो सिर्फ ये मेडिसिन ले रहे हैं और किडनी पेशेंट नहीं है, इंसुलिन पे नहीं है, वो लोग कल से आपको एक खास डाइट पे रहना है 3 दिन तक, 3 days डाइट कॉल्ड DIP डाइट. और कल से जब रहेंगे तो कल से दवा नहीं लेनी. दीज थ्री, डोंट वरी, आई वर्क विद थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड. कल से जो डाइट मैं बता रहा हूँ, दैट डाइट इटसेल्फ इज गोइंग टू बी अ मेडिसिन, राइट? एंड यू कीप ऑन चेकिंग योर ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर टू सी एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक और नॉट. इफ यू वांट, यू शुड. द डाइट इज वेरी सिंपल. द डाइट इज three steps only. As you can see, I'll explain. Step 1, 12 बजे तक till 12 noon आप जो भी मुंह में डालेंगे that should be fruits, only fruits. 3 से 4 तरह के. और जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको ध्यान रखना, जो फ्रूट्स हैं वो मीठे होने चाहिए. It should be sweet fruits like mango, it can be grapes, sweet the better, right? तो ढेर सारा स्वीट फ्रूट आपको लेना है, जो 3 to 4 kind of, not one kind of, I'm saying 3 to 4 kind of fruits. How much you have to eat, that is very, very important, and that is the dosage which will work. That is your body weight into 10. My body weight is 70 kg into 10, that becomes 700 grams. At least, I'm using the word at least. कम से कम 700 ग्राम मेरे हिसाब से, मेरे बॉडी. Somebody is 100 kg, at least 1000 gram, that means 1 kg of fruits. कब तक? 12 बजे तक. You may not be able to eat in one go. Okay, 2 इंस्टॉलमेंट खा लो, 3 में खा लो. इतना जरूर खाना है 12 बजे तक. पराठे नहीं खाने, रोटी नहीं खाना है, चाय नहीं खाना है, पीना है, बिस्किट नहीं लेना है, ब्रेड नहीं लेना है. आई एम नॉट आस्किंग यू टू रिमेन हंग्री. मैं भूखे नहीं मरने बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ज्यादा खाओ, बट खाओ फ्रूट्स. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. 12 बजे तक ओनली फ्रूट्स. नाउ सेकंड स्टेप, व्हेनेवर यू सिट फॉर लंच एंड डिनर, जब भी आप लंच और डिनर के लिए बैठेंगे, 2 प्लेट लेके बैठेंगे, प्लेट 1 एंड प्लेट 2. प्लेट 1 एंड प्लेट 2. प्लेट 1 इज 3-4 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल विच यू थिंक यू कैन ईट इन रॉ. 4 तरह के ऐसे वेजिटेबल जो आपको लगता है कच्चा खा लेंगे. टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, कई सारे वेजिटेबल होते हैं. टोटल क्वांटिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योर बॉडी वेट इनटू 5. मेरा बॉडी वेट इज 70 kg into 5, दैट बिकम्स 350 grams. कम से कम, आई एम यूजिंग द वर्ड कम से कम, इतना तो खाना ही है, इससे ज्यादा खाएंगे तो और अच्छा है. यू टेक ए वेइंग मशीन, एक वेइंग मशीन में इन्वेस्टमेंट कीजिए, सो दैट यू नो हाउ मच इज 350 grams फॉर 70 kg person. That becomes plate 1. Once you eat plate 1, इतना plate 1 खाने के बाद, now you are allowed to eat plate 2. plate 2 में क्या होगा? वेजिटेरियन डाइट जो भी आप खाते हैं, चावल हो सकता है, रोटी हो सकती है, छोले भटूरे हो सकते हैं, उल्टा सीधा ऐसा वैसा जो मर्जी डालना और जितना खाना खा लो. एक्चुअली आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टिंग यू, मैं आपको बोल रहा हूँ ज्यादा खाओ, लेकिन पहले ये खा लो. अगर आप उनमें से जो बोलते हैं इतना खा लेंगे, रॉ वेजिटेबल तो हम खा ही नहीं पाएंगे, पहले 2 दिन ऐसा हो सकता है, बट तीसरे दिन आपकी भूख बढ़ जाएगी. यू विल एंड अप ईटिंग मोर देन व्हाट यू आर ईटिंग नाउ. जितना अभी खाते हैं, अगर आप 4 रोटी खाते होंगे रोज लंच पे, तब भी आप 4 रोटी खा पाओगे, बल्कि 4 से हो सकता है बात भी ना बने, आपको 5 खाना पड़े. एक्चुअली आपका मेटाबॉलिज्म रेट विल इंक्रीज, आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा. तो प्लेट 1 फिर प्लेट 2, उल्टा नहीं करना है, साथ भी नहीं करना है. आई एम सेइंग फर्स्ट दिस एंड देन दैट दिस. पीपल से ऑलरेडी हम तो सलाद खाते हैं, ऑलरेडी फ्रूट खाते होंगे, लेकिन ऐसे खाना है. क्या खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है, कब खाना है. देन द फूड बिकम्स अ मेडिसिन. फूड बिकम्स मेडिसिन, राइट? सो these are the common things which otherwise also you eat, but then you eat a food. These start working as a medicine when you eat this way. What is the science behind it? The time is limited. वो आपको रिजल्ट से पता चल जाएगा. Give yourself 3 days, right? तो जब भी आप लंच के लिए बैठेंगे एंड जब भी आप डिनर के लिए बैठेंगे, रूल्स रिमेन सेम. द ओनली थिंग इज दैट डिनर ट्राई टू फिनिश बाय 7 PM. इफ नॉट 7 PM, लेट इट बी 8 PM. 8 बजे तक डिनर खत्म करने की कोशिश कीजिए. लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, अवॉइड 2 things. पैक एनीथिंग व्हिच इज पैक्ड, डोंट ओपन द पैकेट. बिस्किट है, ब्रेड है, छोड़ दीजिए. एनीथिंग फ्रॉम एनिमल फूड, चिकन है, मटन है, एग है, दूध का प्रोडक्ट है, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छोड़ दीजिए. क्या लेना है? सोग नट्स, स्प्राउट्स, दिस कैन बी योर ऑल काइंड ऑफ नट्स, कैन बी योर स्नैक्स. फ्रूट्स कभी भी ले सकते हैं 12 बजे के बाद, इफ यू रियली वांट.
सनशाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट 40 मिनट्स, इफ नॉट 40 मिनट 30 मिनट, इफ नॉट 30 मिनट 20 मिनट, 20 मिनट तो करो, 15 मिनट तो बैठो, मतलब एक्सपोजर सनलाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये तीनों स्टेप कर पाए, इफ यू आर एबल टू इट 3 steps in next 3 days, you'll be shocked. Your blood sugar will come to the same number or even less than what number you are managing with medicine. मेडिसिन के साथ जो नंबर अभी आप मैनेज कर रहे हैं वही वाला लेवल आ जाएगा या उससे भी कम हो जाएगा इन द फर्स्ट 3 days. सेम गोज विद ब्लड प्रेशर एंड सेम गोज विद ब्लड कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो. ये तीनों फैक्टर 3 दिन के अंदर ही it will balance. That is very very important. So what I give the warning to my patients that if you are trying this food, don't take medicine, because if you take medicine and then you take this, what is going to happen? आपका blood sugar, blood pressure danger range से low हो जाएगा. That is called hypoglycemia, hypotension. एक बात याद रखिए, high blood pressure is not dangerous as much as the low blood pressure. High blood sugar is not dangerous as much as the low blood sugar. हाई ब्लड शुगर से कोई इंसान एक दिन में नहीं मरता है, लो ब्लड शुगर से इंसान कुछ घंटे में मर सकता है, राइट. ज्यादातर जो हार्ट अटैक होते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर से नहीं होते, वो लो ब्लड प्रेशर से होते हैं. दिस इज द वर्ल्ड एवरेज. सो आपको हाई से खतरा नहीं है उतना जितना लो से खतरा है, और लो सिर्फ दवाई से होता है. व्हेन यू आर टेकिंग एक्सेस मेडिसिन देन इट हैपेंस, और व्हेन यू आर टेकिंग दिस काइंड ऑफ डाइट प्लस द सेम मेडिसिन देन इट कैन हैपन. सो अब 3 दिन के अंदर यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ दिस. If you continue doing it for 1 month, कि आप 3 दिन में नहीं रुकते हैं, continue doing it for 1 month, which you must do. If somebody is having angina, किसी को अगर दर्द है, पेन है हार्ट का, तो वो गायब हो जाएगा. If you continue to do it for 2 months, thyroid will vanish, right? अगर कोई 1 महीना करता है and he is fat, 10% weight will go, 10% weight will go, right? If it is a kidney patient, it may take about 6 months time to stop the dialysis altogether. अगर कोई आर्थराइटिस का पेशेंट है, नॉर्मली इट टेक्स अबाउट 3 months टाइम. तो दिस इज अ क्यूरेटिव डाइट एंड दिस इज आल्सो अ प्रिवेंटिव डाइट. ठीक होने के बाद यू कैन इंक्लूड अ चीटिंग डाइट. चीटिंग डाइट का मतलब हफ्ते में एक बार चीटिंग अलाउड है. जो चीज मैंने मना किया है, एनिमल फूड, डेयरी प्रोडक्ट, उल्टा सीधा पैक्ड फूड, यू आर अलाउड टू टेक वंस अ वीक. पेट भर के खा लो. वंस अ वीक मतलब 1 meal, नॉट द होल डे, राइट. सो the most thing. So आप इसको कीजिए. एंड इससे सबसे इंपॉर्टेंट, आई जस्ट फिनिश विद दिस, कि when you are on this diet means you are stopping the medicine. When you take the medicine, जब भी आप दवा लेते हैं, irrespective which medicine you are taking mostly through mouth, मुंह से लेते हैं. याद रखिए, this part it is having its own immunity called mucosal immunity. जो जब आजकल कोरोना का दौर चल रहा है, तो कोरोना वायरस बॉडी के किसी पार्ट से नहीं आएगा, वो सिर्फ मुंह से और नाक से ही घुस सकता है. That's why it is a respiratory influenza virus. So जब वो घुसेगा तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसका, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो उसको रोकेगा, दैट इज म्यूकोसल इम्यूनिटी. मतलब जो आपके पूरे मुंह में जो फ्लूइड है, नाक के अंदर जो फ्लूइड है, दैट इज द फ्लूइड व्हिच इज गोइंग टू स्टॉप इट. ये फ्लूइड इनएफेक्टिव हो जाता है, इसकी इम्यूनिटी ड्रास्टिकली कम हो जाती है इफ यू आर ऑन सम काइंड ऑफ मेडिसिन. दैट्स व्हाई आपने देखा होगा पूरे वर्ल्ड ओवर में जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, कोई पेशेंट हैं, दोज हु आर ऑन सम मेडिसिन, दे आर द वन दोज हु आर द विक्टिम ऑफ कोरोना वायरस. सो इफ यू डोंट वांट टू बी विक्टिम ऑफ कोरोना वायरस, you want to prevent it, the first step is you must stop all these medicine which you are taking on a recurring basis, daily basis. उन सारी दवाइयों को से पीछा छुड़ाना है. तो solution क्या है? Solution is very simple, that you have to be on this diet on a regular basis, on a permanent basis. These medicine you will get rid of automatically. तो जब मेडिसिन मुंह में नहीं जाएगा और ये डाइट जाएगा, तो म्यूकोसल इम्यूनिटी विल बिकम स्ट्रॉन्गर. म्यूकोसल इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होने से क्या कोरोना वायरस नहीं आएगा? तब भी आएगा, बट इट विल होल्ड द कोरोना वायरस हियर इटसेल्फ. यहीं तक रोक लेगा. आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कोरोना वायरस, एनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस. यहीं पे टिल द टाइम वायरस इज अरेस्टेड हियर, जब तक वायरस यहाँ पे रहता है, नो कॉम्प्लिकेशन, नो डेथ. ओनली व्हेन इट डिसेंड टू द हार्ट, टू द लंग्स, देन इट कॉजेज ऑल काइंड ऑफ इलनेस. देन सारा खेल तब शुरू होता है. तो वहां तक जाने नहीं देना है. तो वो तो म्यूकोसल इम्यूनिटी से होगा. और जो लोग मल्टीपल दवाइयों पे है, तो उनका तो भगवान ही फिर वो मालिक है. इसीलिए आपको दवाइयों को से पीछे छुड़ाना है. छुड़ाने का तरीका ये बड़ा सिंपल है, और मैंने तो बोल ही दिया है. 3 दिन बाद आप बताओ, लेकिन आप चीटिंग नहीं करेंगे इन 3 दिन में, आप तभी मैं मानूंगा उस चीज को.
right? So that only Dr. Sunita Gandhi will take care that whether you are cheating or not. Now I leave it to Dr. Sunita Gandhi. मुझे जो बोलना था बोल दिया. Now over to you. तो आज है 6ठा महीना, 6 तारीख, 6 बजे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 3 दिन का एक क्योर. तो हाउ अबाउट दिस कि हम 6ठे दिन मिलते हैं दोबारा. तो आप अपने शेड्यूल के अनुसार हमें बता दीजिए क्या सूटेबल रहेगा, क्योंकि मुझे पता है आप कितने व्यस्त रहते हैं विश्रुत जी. तो कोई डेट दीजिए और अभी हम अनाउंस कर देते हैं उस डेट को. और when I came on to 2007 and I met your mom, I promised that whenever you want me, I'll be there. So I cannot dictate and give you a date. You have to give me a date. अच्छा, तो मेरे हिसाब से हम लोग रख सकते हैं थर्सडे को, जो कि होगा 11 तारीख. Yes. है? तो 11 तारीख थर्सडे को 6 बजे, इसी समय जिस समय ये शुरू हुआ है सेशन, उसी समय हम करते हैं इसे दोबारा. yes. तो आपने जो मुझे कहा वो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह का क्योर एक तो नेचुरल है, तो उसमें कुछ जो कमियां आ सकती हैं वो आप खुद ही बताएंगे हमें, लेकिन शायद मुझे लगता है कि इसमें कोई एज सच रिस्क नहीं है और लेने के लिए सब लोग इसको बड़े चाव से ले सकते हैं. पल खाना सबको पसंद है. और जब हम बच्चों की बात करते हैं, क्योंकि हम बच्चों के साथ रहते हैं और बच्चों के लिए काम करते हैं, तो आपको कोई नुस्खा उनके लिए भी देना चाहिए कि हम उनके अंदर बचपन से ही हेल्दी हैबिट्स बनाएं. तो उसके लिए कोई स्पेशल डाइट या कुछ आप रेकमेंड करना चाहेंगे? बच्चे लोग आजकल बहुत अनशन खाते हैं. मैंने एक प्रश्न भी देखा कि ओबेसिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, बच्चों के अंदर डायबिटीज की प्रॉब्लम बढ़ रही है. तो जंक फूड बच्चे लोग बहुत खाते हैं, पसंद भी करते हैं. तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? हाँ, उसके बारे में एक बड़ा सिंपल नियम आप बच्चे के लिए बना दीजिए, तो बच्चे एक तो उनकी इम्यूनिटी बनी रहेगी और जंक फूड से दूर रहेंगे अपने आप ही, आपके बोले बिना भी. और थोड़ा बहुत जंक खाएंगे तो इट इज अनअवॉइडेबल. ऐसा मुझे लगता है पार्टी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी एक्सेट्रा में, तो थोड़ा बहुत तो खा ही लेते हैं. ये सिनेमा हॉल में जाते हैं, हालांकि वो बंद है, कब खुलेगा वी डोंट नो. सो लेकिन एक रूल मैं बता देता हूँ, बस आपको ये रूल फॉलो करना है बच्चों के लिए. बच्चे कोई भी एज के हो, यू कैन जस्ट फॉलो दिस सिंपल रूल. एंड द रूल इज वेरी सिंपल, दैट इज द बॉडी वेट. बच्चे का बॉडी वेट मान लो 20 kg है, या बच्चे का बॉडी वेट मान लो 30 kg है. जो भी उसका बच्चे का बॉडी वेट है, उस बॉडी वेट का आप कर लीजिए 3% ऑफ द बॉडी वेट, 3%, राइट. तो वो 3% जितना भी होता है दैट बिकम्स, मान लो मैं बोलता हूँ कि 10 kg का बच्चा है, तो व्हाट इज द 3% कितना होगा 10 kg का, आप बताओ. एनीबॉडी? 9 kg का बच्चा है. मैं इसको राउंड फिगर कर देता हूं. Some responses. What is 10% of 3 kg? 10% बता दो 3 kg का. नहीं, 10 kg का 10% बता दो. 10 kg का 10% बताइए भैया आप लोग. 1 kg होगा ना, है ना? 1 kg होगा. अब हाँ, तो लेकिन हमें तो 3% चाहिए, तो 3% कितना होगा? 1 kg का 300 ग्राम, है ना? 300 ग्राम होगा. तो ये जो 300 ग्राम आ गया है, 3% ऑफ द बॉडी वेट, राइट, वो उतना ग्राम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स बच्चे को पूरे दिन भर में खाना ही खाना है. दैट इज द मिनिमम क्वांटिटी. मैं बोल रहा हूँ दैट इज नॉट द मैक्सिमम क्वांटिटी, दैट इज द मिनिमम क्वांटिटी टू एटलीस्ट टेक केयर ऑफ द इम्यूनिटी. तो ये तो हो गया पहला नियम कि द चाइल्ड विल ईट एटलीस्ट दिस मच अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. इसमें कितना फ्रूट होगा, कितना वेजिटेबल होगा, सारा फ्रूट होगा क्या, सारा वेजिटेबल, दीज आर ऑल फ्लेक्सिबल थिंग. बट यू हैव टू टेल द चाइल्ड कि ये आपकी दवा है, ये आपके पेट के अंदर आपके सोने से पहले होना चाहिए. वो कब खाएगा, कैसे खाएगा, वो दैट यू हैव टू मेक आउट. बट दिस इज द टोटल मिनिमम डोज. ये मिनिमम डोज बोल रहा हूँ. अच्छा, मैक्सिमम डोज कितना हो सकता है? इट शुड गो अप टू 7%, 8%, तो बहुत मजा आ जाएगा. लेकिन फिर भी 3% और 8% के बीच में कहीं हमें रखना है. दैट इज द अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यू शुड बी एबल टू फीड योर चाइल्ड. जो तो 3% से कम करेंगे तो डेंजर जोन में आ गए वो, राइट. सो दिस इज द रेंज जो आपने तौला और बच्चे को रख दिया. और ये टू एंश्योर कि थ्रू आउट द डे एंड एट द एंड ऑफ द डे बिफोर ही स्लीप दिस इज इन हिज स्टमक, उसके पेट में चला गया. बस ये पहला रूल. दूसरा रूल, जब जो बच्चे दूध पीते हैं, डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, देयर आर नंबर ऑफ मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन कि वो दूध में हॉर्लिक्स डाल के एक गिलास पिया और वो स्कूल चले गए. चेंज द रूल. एक गिलास पीना है
लेकिन इंस्टेड ऑफ milk you can the child can take nut milk मतलब बादाम का दूध, जिसमें नट शेक मैं बोलता हूँ, उसमें केला डाल दिया तो शेक बन जाएगा, राइट। आपने 20 बादाम लिए, उसको भिगो के रखा पूरे रात भर, फिर उसको मिक्सी में डाला, ब्लेंडर में डाला, ऊपर से एक केला डाल दिया, 2 केला डाल दिया और पानी डाल दिया और कोकोनट वाटर डाल दिया, तो इट बिकम्स अ नट शेक, नट ड्रिंक। उसमें जबरदस्त न्यूट्रिशन है, जबरदस्त, लाइक ओलंपिक चैंपियन के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए उस लेवल का न्यूट्रिशन है। सो जब भी बच्चे का दूध वाला रूटीन है, वो रूटीन में दूध ही पिएगा, बट ओनली थिंग इज दैट इट इज चेंज्ड एज नट मिल्क, नट शेक, दैट मींस अ प्लांट बेस्ड मिल्क। तो यानी कि आपको डेयरी से पीछे छुड़ाना है और उसकी जगह पे ये नट ड्रिंक बीच में डाल देना है। और इसके अलावा एक आखिरी बात बताता हूँ, आप में से वो जिनके बच्चे थोड़े इम्यूनिटी कम होती है, जल्दी जल्दी जुकाम होने लगता है, और होता तो जाता ही नहीं है, जुकाम होगा बच्चे को एक साल में 3 बार या 4 बार, वो होना अच्छा है, लेकिन हुआ और गया ही नहीं, महीने तक जुकाम ही जुकाम है, थोड़े से में ट्रिगर हो जाता है। इफ योर चाइल्ड इज लाइक दिस, और फॉर एवरी चाइल्ड, every day the first thing in the morning when they get up should be the citrus fruit juice, मतलब मौसमी का जूस, आजकल तो मौसमी आ रहा है, 1 ग्लास उठे खाली पेट 1 ग्लास पीना है, ये नियम बना दिया, तभी का तभी जूस निकाला, उसे छाना भी नहीं, डोंट फिल्टर इट, डोंट सीव इट, और तब उसको धीरे धीरे पीना है तो ज्यादा अच्छा है। धीरे धीरे बच्चे कहाँ पियेंगे, वो जल्दी पी लेंगे, लेकिन चलो पीना है। तो जो अभी मैंने बताया, इफ यू कैन टेक केयर दिस मच रादर देन स्टॉपिंग द फास्ट फूड, ये मत खाओ वो मत खाओ, आपका फोकस होना ये खाओ ये खाओ ये खाओ। जब ये सारे खा के उनका पेट पार्शली भर ही जाएगा तो बाकी चीजों के खाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर खा भी लिया तो भी ये इतना सारा अच्छा चीज खाया, इट कैन काउंटर द बैड इफेक्ट ऑफ द खराब चीज। इसीलिए हमारा फोकस होना चाहिए ये खिलाना है, रादर देन फोकस कि क्या नहीं खिलाना, क्या नहीं खिलाना वो तो ठीक है, लेकिन क्या खिलाना है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड दीज आर द 3 थिंग्स व्हिच आई जस्ट टोल्ड यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन व्हिच द चाइल्ड नीड्स एट दिस मोमेंट सिंस दे आर चाइल्ड, वो ग्रो हो रहे, तो यही चीजों की जरूरत है। यस बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही लॉजिकली एग्जाम्पल्स के द्वारा, आप प्रॉप्स यूज करके बहुत कॉम्प्लेक्स बातों को सरल तरीके से समझा देते हैं। तो मुझे लगता है आप एक अल्टीमेट टीचर हैं, क्योंकि टीचर को भी यही करना होता है कि एक कॉम्प्लेक्स चीज को बनाना, सरल बनाना। तो वेरी मुझे भी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं इसको डेफिनेटली अपने लोगों को, जो जान पहचान के लोग हैं, उनको डेफिनेटली एनकरेज करूंगी इसको ट्राई करें। और 11 तारीख को जब हम लोग वापस मिलते हैं तो हम लोग डेटा कंपेयर करेंगे, लेकिन इसको कैसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसमें तो कमेंट्स आएंगे। क्या आप चाहेंगे कि जो लोगों ने इस DIP डाइट को ट्राई कर लिया है, तो हम एक जूम सेशन कर दें, या कोई गूगल मीट सेशन कर दें, जिसको कि हम लाइव प्लेटफॉर्म पे ला पाए, और वो अपना बयान उस जूम सेशन के अंदर दें। हाँ, वो कर सकते हैं। उनको ये भी बोले कि वो ब्लड प्रेशर चेक करें, ब्लड शुगर चेक करें, बॉडी वेट चेक करें, कितनी एनर्जी लेवल का चेंज आए एट ऑल। जिनको कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिल जाता है 3 दिन में, व्हाट काइंड ऑफ रिलीफ दे हैव गॉट। जिनको नी में प्रॉब्लम होती है, अबाउट 30% 40% पेन जो होता है वो रिड्यूस होता है। सो दे शुड हैव ऑल दीज अवेलेबल पैरामीटर्स, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल छोड़ दीजिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। वेट कितना था और अब कितना है, 3 दिन के बाद 5 दिन हो जाएंगे ना तब तो, राइट। और तीसरा पैरामीटर हो गया पेन, जिनको रहता है कि पेन का थ्रेशोल्ड अब कितना है कंपैरेटिवली इन द स्केल ऑफ 10, राइट। एनर्जी लेवल का थ्रेशोल्ड कितना है इन द स्केल ऑफ 10, अभी आज का एनर्जी कितना रहता है लगभग, उसको हमने मान लिया, मान लो 5, तो उस दिन इससे ज्यादा है या और कम है, कुछ भी हो सकता है। कि कुछ लोग बोर हो जाते हैं खाने को, तो वो देन दे व्हेन बोर्डम समटाइम सीम्स टू बी लॉस ऑफ एनर्जी, बट ऐसा है नहीं, राइट। सो ये अलग अलग पैरामीटर वो अगर नोट कर पाए तो फिर ये काफी फ्रूटफुल होगा, देयर एक्सपीरियंस विल बी फ्रूटफुल। ठीक है, बढ़िया। तो कल मॉर्निंग में सब लोग अपनी जो आपका बेसलाइन है वो लेंगे, वेट का, और इसके अलावा फास्टिंग शुगर का, हाँ, इन सब चीज़ों का वो वेट, वो अपना मेजर रखेंगे। उसके बाद ये डाइट होल हार्टेडली ट्राई करेंगे, और जहाँ तक हो सके बच्चों को भी इस डाइट पे लाएंगे, क्योंकि जब आप खा रहे हैं तो बच्चे भी खाना शुरू कर देंगे ज़्यादा आसानी से। और फिर हम लोग 11 तारीख को मिलकर इसको चेक करेंगे। तो हम लोग जूम सेशन हम आपको भेजेंगे, लेकिन इन सब जो हमारे दर्शक हैं, जो इस समय ऑडियंस है हमारी, इनको ये मैसेज फिर कैसे पहुंचेगा, आप लोग प्लीज खुद ही ट्यून इन कर लीजिएगा। ये गेटी लर्न स्लैश लाइव पे आप आ जाएंगे जब, सो facebook.com गेटी लर्न, जिसपे आप अभी हैं, इसी पे आप दोबारा उसे सुनेंगे। और जिन लोगों को ये अंदर आना है और DIP डाइट का अपना बयान देना है, अपना एक्सपीरियंस देना है, उन्होंने बेस लाइन मेजर करना है उस दिन के
लिए उन्होंने एंड लाइन मेजर करना है 6 दिन बाद, 5 दिन बाद, तो वो फिर हमें कांटेक्ट करें। जो एक नीचे नंबर दिया जा रहा है 7408401000, तो इस पे आप लोग कांटेक्ट करिए कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो एक लाइव एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, और हमें लगता है कि इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि आप खुद ट्राई करें। और बस ये है कि नुकसान का जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नुकसान का ध्यान रखिएगा कि आपका जो ब्लड शुगर है बहुत ड्रॉप ना कर जाए, मेडिसिन आपको एडजस्ट करनी है, जो भी करना है डॉक्टर साहब ने बताया है, आपने समझा होगा। तो आप डॉक्टर साहब से भी टच में रहिए और हम लोग फिर इसको आगे ले जाते हैं। नाउ आई वुड लाइक बिसरूप जी टू प्लीज गो थ्रू ऑल द कमेंट्स and just look for questions and please address those questions, because many people have joined for this session and many of them have appreciated your DIP diet, और जो लोग और भी हैं जिनको DIP डाइट ने मदद करी है, अपना प्लीज कमेंट्स में डाल दें ये बात, तो दूसरे दर्शकों के लिए ये अच्छा रहेगा समझना कि ये वाकई में हेल्पफुल रहा है उनके लिए। साथ में हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी कमेंट्स आपने दिए हैं जिसमें क्वेश्चंस हैं, वो बिसरूप जी अभी इस समय आंसर करें थोड़े से क्वेश्चंस। ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड के लिए क्या करें? ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, दैट इज द बेस्ट फूड फॉर द चाइल्ड। उसके लिए और कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके पेरेंट्स को, उसकी उनकी मदर को करने की जरूरत है। द मदर, इफ द मदर कैन बी ऑन दिस डाइट, द काइंड ऑफ डाइट विच आई सेड, इन एडिशन टू दैट अगर वो साथ में वेजिटेबल जूस, खास तौर पे ग्रीन जूस और रेड जूस जोड़ ले। ग्रीन मतलब स्पिनच, रेड मतलब बीटरूट या टमाटर का बड़ा ग्लास अगर जोड़ लें विद ऑल द डाइट, विद जस्ट DIP डाइट प्लस वेजिटेबल जूस, इफ शी कैन डू इट माइनस डेयरी प्रोडक्ट ऑब्वियसली, तभी वो DIP डाइट है, कर ले, तो दैट इज द डाइट विच विल हेल्प टू प्रोड्यूस अ बेटर न्यूट्रिशन मिल्क फॉर द चाइल्ड। तो इसमें मदर का जो हेल्थ है वो इम्पोर्टेंट है, बच्चा तो दूध ही पिएगा, और मदर का हेल्थ और के लिए दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिखते हैं कि इस कोकोनट वाटर का सब्स्टिट्यूट क्या है? कोकोनट वाटर का सब्स्टिट्यूट है अनार। अनार अगर लेंगे तो दैट इज, अनार खाना है, उसको पीना नहीं है, जूस बना के उसको खाना है, वही इसका सब्स्टिट्यूट है। प्रेगनेंसी डाइट क्या है? प्रेगनेंसी के दौरान, फ्रॉम द स्टार्ट बिगिनिंग ऑफ द प्रेगनेंसी टिल द टाइम ब्रेस्ट फीडिंग मदर, उसके लिए क्या करना है, जो मैंने अभी तक बताया वो सब, स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान, इसमें आप जोड़ लीजिए 5 ऐसे, ये ठीक है ना, 5 DIP डाइट प्लस 5 ड्रिंक। 5 ड्रिंक में से 2 ड्रिंक मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, नारियल पानी है, ग्रीन और रेड जूस है, ये दोनों तो लेना ही है, राइट। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट लेना है, राइट। इसके अलावा नट ड्रिंक लेना है, राइट। तो ये हो गया, और इसके अलावा वेजिटेबल स्मूदी और वेजिटेबल सूप ये लेना है। तो दीज आर द 5। आप DIP डाइट लेंगे प्लस ये 5, आपको देखना है ये 5 स्प्रेड ओवर द होल डे आपने लिया क्या? जो DIP डाइट लिया वो आपने अपने लिए लिया, और ये जो 5 ड्रिंक लिया ये होने वाले बच्चे के लिए लिया, बिकॉज यू टू ईट फॉर 2 people, right? So this is the diet which you have to take throughout the pregnancy, minus all kind of supplement which they want to push, फॉलिक एसिड है, आयरन है, ये सब चीजें, कैल्शियम है, ये सब चीजें नहीं लेना है। वाई? इसलिए नहीं लेना है क्योंकि ये आपको नुकसान करेगा, काफी ज्यादा नुकसान करेगा। अगर आप किसी डायबिटीज के मेडिकेशन पे ऑलरेडी हैं एंड यू आर प्रेग्नेंट, देन उससे पीछे छुड़ाना है। पीछे छुड़ाना कैसे है? वेरी सिंपल, जो DIP डाइट लेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्लड शुगर कम होने लगेगा, ब्लड शुगर कम हो जाएगा तो पीछा छूट ही जाएगा। तो थ्रू द प्रेगनेंसी, इवन टिल द टाइम यू आर फीडिंग योर बेबी, आपको ध्यान रखना है कोई भी केमिकल शुड नॉट गो थ्रू द माउथ, राइट। सो केमिकल क्या होता है? दवाइयां ही होती हैं या सप्लीमेंट्स होते हैं, उनसे पीछा कैसे छुड़ाना है? जस्ट व्हेन यू आर ऑन दिस डाइट, दोज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड। वो तो वैसे भी जरूरत नहीं उन चीजों की, लेकिन एटलीस्ट पैरामीटर इस डाइट से भी मेंटेन हो जाएगा, बल्कि उससे अच्छा हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ओके, आई थिंक दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो लोगों ने पूछा है। 644 बहुत सारे क्वेश्चन है, थोड़ा आप स्क्रॉल अप कीजिए। हाँ, एलर्जी, देखो जब भी फॉर एग्जाम्पल साइनसाइटिस की बात कर रहे हैं तो इसमें साइनसाइटिस के लिए DIP डाइट प्लस सिट्रस फ्रूट्स, आपको 4 तरह के फल मैंने बताया, उनमें से एक फल और जोड़ दो, इन चारों में से एक शुड बी सिट्रस फ्रूट एंड 3 कैन बी एनी फ्रूट, राइट। सो देन इट विल, जो एलर्जी की प्रॉब्लम है, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो सकती है या हो जाती है।
देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, यूटीआई है या वेजाइनल इन्फेक्शन है। यूटीआई एंड वेजाइनल इन्फेक्शन में यू हैव टू अंडरस्टैंड एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, राइट। दे, आपको मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ एक्चुअली। सो जो यूटीआई है और वेजाइनल इन्फेक्शन है, इस दोनों में कॉमन क्या है कि जो इन्फेक्शन, इन्फेक्शन मतलब जर्म्स, जर्म्स जो फूड खाते हैं वो फूड अगर जर्म्स को देना बंद कर दें, सो जर्म्स टेक्स अबाउट 3 days टू डाई देयर ओन डेथ एंड बाय 4th day दे आर ऑल डेड, राइट। तो अब आपको सिर्फ इतना करना है, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम यूटीआई मे बी फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और जिनको वेजाइनल इन्फेक्शन ऑफन होता है, उसको सिर्फ इतना है करना है कि जर्म्स जो फूड खाते हैं उन फूड को, जर्म्स को फीड करना बंद करना। अच्छा, जर्म्स क्या फूड खाते हैं आप पूछेंगे, वेरी सिंपल। DIP डाइट में जो प्लेट 2 है, जो प्लेट 2 है, प्लेट 2 को अगर आपने माइनस कर दिया फॉर 7 days, वो तो 3 दिन में मर जाते हैं, लेकिन चलो 4 दिन और दिए, कोई जर्म्स को ज्यादा स्ट्रगल करके जीता होगा, राइट। इफ यू माइनस प्लेट 2 लंच एंड डिनर बोथ फॉर 7 days एंड रिमेनिंग डाइट अब लेते हैं विच इज मोस्टली रॉ, राइट, क्वांटिटी जितना लें उतना अच्छा है, तो दैट बिकम्स द डाइट टू क्योर वेजाइनल इन्फेक्शन, दैट इट बिकम्स द डाइट टू क्योर यूटीआई। श्योरली ये बिल्कुल काम करता है, इट वर्क्स बाय 3rd day। लेकिन आप 7 दिन लेके चलिए, मान लो फिर भी कोई एक आध जिंदा रह गया तो क्या होता है कि वो फिर मल्टीप्लाई होगा। सो विद इन 3rd day दे विल डाई। हाउ यू विल नो विद इन 3rd day दे हैव डाइड? बिकॉज जो आपके सिम्टम्स हैं, सिम्टम विल बी गॉन एंड दैट इज द मोस्ट, जो इरिटेशन होती है, सिम्टम होती है, खुजली होती है, वो सब चला जाएगा। तो आपको समझ आ जाएगी बात की वो तो मर गए हैं, लेकिन मरने के बाद भी चांस नहीं लेते, हम 3-4 दिन और कर लेंगे ताकि दोबारा इनकी पूरे वंश को आपने खत्म कर दिया, राइट, आगे कभी होने का सवाल ही नहीं है। सो दैट इज वेरी सिंपल। देखिए पैनक्रियाटिस के बारे में किसी ने लिखा है, देखिए जब भी हो ना आप, अर्थराइटिस है, पैनक्रियाटिस है, इसमें साइनोसाइटिस है, आप देखिए इसमें कॉमन क्या है, आइटिस। आइटिस वर्ड को पढ़ेंगे तो उससे एक ही बात सामने आती है, इन्फ्लेमेशन। तो कोई बोलेगा ओटाइटिस में क्या करें, कोई बोलेगा गैस्ट्राइटिस में क्या करें। तो जब भी आप ऐसा पूछना चाहते हैं कि किसी XYZ आइटिस में क्या करें, तो आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, गैस्ट्राइटिस मतलब स्टमक में इन्फ्लेमेशन। तो जो इन्फ्लेमेशन के लिए मैंने ये देखा है कि सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, यू जस्ट बी ऑन दिस डाइट, DIP डाइट। और लेकिन अब कितने दिन में ठीक होगा इसका मैं एक रूल बता देता हूँ। जो ऑर्गन स्टमक के ज्यादा क्लोज है वो जल्दी ठीक होते हैं, द ऑर्गन विच इज फार्दर अवे फ्रॉम स्टमक दैट टेक्स लॉन्ग लॉन्ग टाइम। स्टमक इटसेल्फ, जैसे गैस्ट्राइटिस है, इट टेक्स अबाउट 3 days टू क्योर। मान लो स्किन में कुछ है और मान लो नी पेन है, राइट, सो लेट्स से अर्थराइटिस है, इट टेक्स अबाउट 2 months टाइम, 3 months टाइम। जितना ज्यादा स्टमक से दूर है उतना ज्यादा टाइम लगता है, बट वन थिंग इज श्योर, people start getting some relief within a week's time of following the diet. So that is the answer of this question, and I think इसके साथ ही हमारा ये टाइम आउट भी होने वाला है. Over to Smita Gandhi ji. I'm here. Yes. So I answered most of the questions. Ji, wonderful. Question I'll just take it, and this should be the last question. Please tell why not milk. This is something which you have to ask yourself also. देखिए जो चीज हम बचपन से लेते आए हैं, देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, उस बिलीफ से बाहर निकलना बड़ा ही मुश्किल है. बिलीफ से बाहर निकलने के लिए मैं एक चैलेंज आपको देता हूँ, एक चैलेंज आपके लिए, सभी के लिए, वो ये कि इतने सालों से आप दूध पीते आए हैं, डेयरी प्रोडक्ट लेते आए हैं. अगर आप 15 दिन दूध नहीं लेंगे तो कोई मरने नहीं वाले, आपका कैल्शियम लेवल घटने नहीं वाला 15 days, कि आफ्टर ऑल आपने इतने समय से दूध लिया है. मैं एक चैलेंज और देता हूँ कि आप कुछ चेंज मत कीजिए अपने जीवन में फॉर नेक्स्ट 15 days. जस्ट ड्रॉप द डेयरी प्रोडक्ट, रादर ड्रॉप द एनिमल प्रोटीन, राइट. जो भी सोर्स से एनिमल प्रोटीन आता हो, वो दूध से आता हो या मीट से आता हो, उसको बंद कर दीजिए. रेस्ट ऑफ द फूड एंड लाइफस्टाइल रिमेन द सेम फॉर ओनली 15 days. ऑन 16th day यू आस्क योरसेल्फ, मेरी एनर्जी लेवल कितना है, मेरा पेन कैसा है, मेरी रात की नींद कैसी है, मुझे हेडेक अब हो रहा है कि नहीं, जिनको होता है लगातार. So you'll be surprised, just making one decision in your life, that is dropping the dairy, only one decision in your life, rest remain the same. उसी में आपको 15 दिन के अंदर ही इतना फर्क पड़ गया. अगर तो फर्क पड़ गया तो आपकी बॉडी ने ही जवाब दे दिया. मैं तो क्या आपको लॉजिक से समझाऊं, आपका बॉडी जो बोल रहा है उससे बड़ा सच कुछ नहीं हो सकता. तो गिव योरसेल्फ अ चैलेंज ऑफ 15 days ओनली टू सी द ट्रूथ. ये तो हो गया, आप खुद करके देखेंगे. लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इंसान एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है, और इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है, राइट. हम भाई दूसरे जानवर का दूध लेके पी रहे हैं,
कोई और जानवर, फॉर एग्जाम्पल टाइगर कैन कैच अ काउ एंड ईट ए काउ। कभी आपने सुना है कि टाइगर ने गाय को पकड़ा और गाय का दूध पीना शुरू कर दिया? राइट, सो दैट नेवर हैपेंस इन नेचर। व्हेन यू ब्रेक द लॉ ऑफ द नेचर, सो उसकी सजा मिलती है, और मिल रही है इंसान को। डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, ये एनिमल्स में नहीं होते। राइट, एनिमल में होते हैं वो जो पेट्स होते हैं, पेट्स, क्योंकि पेट्स वो इंसान की तरह खाने लगते हैं। सोचते हैं मेरा बॉस जो है वो पिज्जा खा रहा है तो वो डॉग भी पिज्जा खाता है, तो फिर उस डॉग को वही वाली डायबिटीज होती है जो उसके, मेरे कितने दोस्त हैं उनको वो इंसुलिन लेते हैं और उसका डॉग भी इंसुलिन लेता है। राइट, लेकिन इन द वाइल्ड द पेट आर नेवर हैविंग डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, because they don't break the law made by the nature. So you are breaking the law, we are breaking the law, so हमें बीमारी हो रही है। तो 15 दिन का चैलेंज आपके लिए भी है, जिसने ये सवाल लिखा या जिनके दिमाग में ये वाला सवाल है, सभी के लिए है, क्योंकि इससे अच्छा ही होने वाला है। ओके, बहुत चैलेंज कर रहे हैं आप सबकी थिंकिंग को, क्योंकि दूध दही सब बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारे कल्चर में। हाँ, और ये हाँ, हम लोग बहुत ब्रेन वॉश्ड हैं इसके बारे में कि ये yes, नेसेसरी कंपोनेंट है, उसको कम कर देंगे तो बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, हमको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो true. ये चैलेंजिंग इशू है। आपने कहा 15 दिन का ट्रायल कर लीजिए और खुद ही आपको पता लग जाएगा। लेकिन फिर कैल्शियम बॉडी में कैसे बढ़ाएं, क्योंकि सबके दिमाग में ये है कि दूध के थ्रू कैल्शियम आता है, दही के थ्रू कैल्शियम बॉडी को मिलता है। देखिए, ये एक मिथ है, दूध के थ्रू आता है, ये तो दिमाग में है बस। राइट, अब देखिए ना, ये मान लो गाय का की बॉडी कैसी है, उसकी मसल, उसके हड्डियां कैसी है, बहुत स्ट्रांग है। हाथी की हड्डी कैसी, बहुत स्ट्रांग है। आप सोचिए, गाय को, हाथी को, गधे को कैल्शियम कहाँ से मिलता होगा? ये लोग तो दूध नहीं पीते ना, ना ही ये मीट मछली खाते हैं, इनको कैल्शियम कहाँ से मिलता है? आपके पास जवाब है, वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स, उनसे ही तो मिलता है। जो डायरेक्ट सोर्स है जिससे गाय इतना दूध दे रहा है कैल्शियम वाला, वो खुद कहाँ से कैल्शियम का सोर्स मिल रहा है उसको? अरे पत्तों से मिल रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला, ग्रीन लीफ का जूस एक बार पीजिए, एटलीस्ट प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, तो सभी लोग पीजिए अगर आपको चिंता है ज्यादा कि आपका कैल्शियम लेवल के लिए। मैंने बोला नट ड्रिंक पीजिए, तो कैल्शियम लेवल के लिए। और दूध जो पीते हैं उसमें जो कैल्शियम होता है, दैट इज अ टॉक्सिक कैल्शियम। टॉक्सिक कैल्शियम मतलब बॉडी के अंदर गया, लेकिन बॉडी में रॉन्ग जगह पे जाके इकट्ठा हो गया, इट बिकम्स अ स्टोन, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन। यू वांट लॉट ऑफ कैल्शियम बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, राइट? सो इट मेक्स द बोन ब्रिटल, राइट? सो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमें कैल्शियम चाहिए, बट राइट जगह पे चाहिए। कहीं गलत जगह पे होगा तो वो स्टोन बन जाएगा, गलत जगह पे होगा तो वो ट्यूमरस ग्रोथ करेगा। So we don't want that calcium. So the calcium in the milk, it do not know where to go in the body. So follow the nature. जो हड्डियां मजबूत हैं, हाथी की भी मजबूत है, वो कोई कैल्शियम दूध से नहीं, बाल्टी भर कर दूध तो पीता नहीं है। तो ये एक रॉन्ग नोशन है। इसके लिए मैं कुछ लिंक्स आपको भेज दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना कि रिसर्च पेपर क्या कहता है। देखिए, जो मिल्क का एक बहुत बड़ी लॉबी है पूरी दुनिया में, नेशनल डेयरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिल्क को प्रमोट करता है, लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कोई लॉबी नहीं है अभी तक, तो उसको कोई प्रमोट नहीं करता है। सही है। अच्छा, आपके एक पर्सनल नोट पे आपने बहुत सारे गिनेस रिकॉर्ड्स अर्ज किए हैं, और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड इज नॉट इजी टू अकम्प्लिश। एक बात जो आपने मुझे उस समय बताई थी, बड़ा फैसिनेटिंग लगी मुझे, कि यू वर बॉर्न विद अ होल इन योर हार्ट, राइट, you got a Guinness World Record for the highest numbers of push-ups in a minute. 1 मिनट में सबसे ज्यादा पुशअप्स आपने किए, जबकि आप बचपन में जब आप थे तो आपके हार्ट में एक होल था। तो ये कैसे अकम्प्लिश हो पाया कि वर्ल्ड का रिकॉर्ड आपने सेटअप किया फिजिकल स्टैमिना में? हाँ, देखिए, दैट हैपेंड इन 2007, राइट? इट इज कितना साल हो गया, काफी साल हो गए, 13 साल। तो इसमें आवर हार्ट इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल ऑर्गन आफ्टर लिवर। लिवर का हार्ट इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। तो आप ये देखें, कितने लोग मैंने देखा, मेरा होल जो था वो पकड़ा गया था व्हेन आई वाज अबाउट 3.5 years ओल्ड। रेकरिंग फीवर होता है, तो उससे देन द कॉज पकड़ा गया। कई लोग होते हैं जो हार्ट में होल होता है और जिंदगी के लास्ट में 60 years के एज में, 70 years के एज में तब पकड़े जाते हैं कि होल है। ऐसा भी होता है, फिर होल अचानक बढ़ने लगता है। सो बट द हार्ट इज सो फ्लेक्सिबल कि आप अगर राइट डाइट लेंगे और राइट तरह से एक्सरसाइज करेंगे तो हार्ट कैन रिकवर। मैंने ये देखा है, अपने ऊपर मैंने देखा है और मैंने अपने पेशेंट्स पे देखा है दैट द राइट काइंड ऑफ डाइट। व्हाट इज द राइट काइंड ऑफ डाइट? द काइंड ऑफ डाइट जो मैंने ऑलरेडी बताया, वही डाइट, और कोई नया डाइट नहीं है। इफ यू कैन डू इट, इफ द हार्ट पेशेंट डज इट, तो चाहे उसके अंदर कितने सारे ब्लॉकेज में बताया हो, चाहे उसके अंदर बोला कि तीनों आर्टरीज 100% ब्लॉक्ड है, डोंट वरी, यू टेक इट इन वन मंथ and then you see all the blockage has gone, all the blockage in 1 month. Simultaneously heart पे काम करता है डाइट। तो राइट डाइट एंड lot of
practice through exercise can help you slowly to reach to a goal. तो बेसिकली यही बताने की मेरी कोशिश थी उस वक्त कि हाँ ये पॉसिबल है, तो दैट बिकम्स रिकॉर्ड। बट मुझे लगता है वो कोई भी कर सकता है, क्योंकि वो लोग अगर राइट कॉम्बिनेशन और डाइट एक्सरसाइज करेंगे तो कोई भी कर लेगा। आपके बहुत बड़े बड़े क्लेम्स हैं, और लेकिन आपने बहुत बड़े बड़े अकम्पलिशमेंट भी कर के दिखाए हैं अपनी लाइफ में। और ये सच है कि जो इतना अकम्पलिश्ड हो, तो जब आपको कोई सलाह दे रहा है तो उसके पीछे कोई मीनिंग होगा। तो दर्शकों, डियर ऑडियंस, आई एम श्योर यू हैव एंजॉयड दिस session, very lively and well presented thought process of Dr. Biswaroop Roy Chaudhary. His research of many years, research on himself and on many people who swear by his diet. The diet is very simple. As far as I could understand, 3 parts. Eat your fruit in the morning till 12 o'clock, as much fruit as you wish, but at least 10 times your body weight. So if you're 70 kilos, then 700 grams. Then for lunch and dinner, have 2 plates. First, eat the plate with vegetables, salads, and such things that add up to 5 times your body weight. So if you're 70 kilos, then 350 grams. And then rest of the food can be anything, but avoid milk products, animal products, and so forth. You can, after 3 weeks, once in a while, you can have a cheat diet, but that's also not all day long, just once in a while. And that you can combine your daily schedule with eating nuts, sprouted fruits, any kind of proteins of that nature. And also another very important part of the diet is कि आपको sunshine लेनी है, ideally 40 मिनट के लिए नहीं तो at least for some time, say 20 minutes to 40 minutes of sunshine, vitamin D. So I think this is simple, and it's perhaps something that nature has also suggested, because I think God has provided us all the cures within natural products, and in the future perhaps our diet will be back to a more vegetarian diet, a more vegan diet. I am a follower of the Baha'i faith, and Baha'u'llah, he said, treat disease through diet by preference, refraining from the use of drugs. And if you find what is required in a single herb, do not resort to compounded medicament. So obviously we need to avoid medicine. And I have a feeling that majority of the households are plagued with medicines. We have so many people in our families taking medicine. It's become almost like part of our diet. So the way to get rid of medicine is to go the ways that Dr. Biswaroop Roy Chaudhary has suggested. And there's a lot of proof for these ways, as Dr. Biswaroop Chaudhary has suggested. He'll share the data, the research, and it's very compelling. So thank you so much, Biswaroop for sharing this. Thank you for the audience to be here and to listen to Dr. Biswaroop. And Biswaroop, thank you. And we'll come back to you 11 तारीख को 6 बजे. 11th, 6 o'clock, we'll be back with some more testimonies and people who have tried it out. But of course, you're not allowed cheat diet between now and the 11th. You're supposed to strictly follow the diet he's proposed. Otherwise, the results will not be consistent. So I'm going to be one of your experiments for sure. Thank you so much, Mr. Really appreciate your time today. Thank you. Whenever. Thank you. Sabko namaskar. Thank you.